ناظرین اپنے ناظرین کو لیے چلیں گے براہ راست. اس وقت ایکس سروس مین اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, پہلے وہ سن لیتے ہیں. Of the three services, Pakistan Army, Pakistan Navy and Pakistan Air Force, I have with me Air Vice Marshal Fahim, which is sitting with me. I have Major General Jafri. I have Major Wasim representing social media. Brigadier Zareen and Brigadier Jamil. Gentlemen, we represent over 2 million retired officers, JCOs, NCOs, and all ranks, from 4-star to a sepoy, a soldier, sailor, and airman. We are here today to talk about the recent developments between India and Pakistan and the false flag operation that India did in Pahalgam, Kashmir, in occupied Kashmir. It was a false flag operation which was initiated by India itself. And from this operation, they wanted to take an advantage of closing Indus water and abrogating the Indus Treaty between India and Pakistan. Mind it, it was done at a time when Vice President of America was visiting India. This is not the first time that India has done this. Prior to this, in 2019, if you remember, Pahalgam operation, false flag operation was done. And at that time, India, taking the excuse of this, abrogated 370 and 35A of the Constitution. Gentlemen, we are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan and the defense of Pakistan. Let me assure you that all veterans from all armed forces who are retired, we have retired from service, but believe me that we are always available to defend each and every inch of Pakistan. We reiterate our support that any time India threatens Pakistan, they will get a very, very befitting reply. And inshallah, on one order from the higher authorities, Pakistan Army Chief, we all will be there fighting along our armed forces on ground, in the air, but we are there. In fact, any time they go in for this adventure physically, they will get a befitting response and a strong, measured, befitting response. So we are here to stand together and show our solidarity to armed forces of Pakistan, to people of Pakistan, and to this dharti Pakistan. Believe you me, whatever we are to do today, it is because of this country, Pakistan, and the armed forces of Pakistan. So till death, we pledge that we are going to stand by it and defend each and every inch of Pakistan.
the Indians have done all this at a time when Pakistan was progressing economically, politically, and it is becoming a really progressive nation. Just to stall all this, the Indians have undertaken all this false flag operations, and believe you me, India, this is not the first time. During our service also we have seen the Indians have been doing lot of terrorism in Pakistan. It is not, and it's not a story that I'm telling you. It is a fact. In Balochistan and KPK and elsewhere also. So let it be very clear that hence on this will not be tolerated. Pakistan is on road to progress, prosperity, and we all veterans stand by it, and we inshallah will put in all our efforts to stabilize Pakistan and defeat all threats that emanate from India or elsewhere. Throughout Pakistan, and particularly in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. So this is what we would say. I'll just hand over to Marshal, please. शुक्रिया सर. मैं इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में सबसे पहले तो आपको पीएफ की तैयारी के मतलब बताऊंगा, और दूसरा फिर मैं जो पीएफ के वेटरन्स की जो जज्बा है उसको हाईलाइट करूंगा. सबसे पहले तो तैयारी पे देखिए कि टेक्नोलॉजी और मैन पावर दो चीज़ें होती हैं. किसी भी एयरफोर्स की वो जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाती है, ये कम करती है. टेक्नोलॉजी वाइज 2019 में पीएफ ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया था कि वी आर मच अहेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. इन 2-3 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने और भी ज़्यादा तरक्की की है जहाँ तक कि टेक्नोलॉजी का दारोमदार है. इसके अलावा जो पीएफ की मैन पावर है वो इस कौम के सबसे बेहतरीन बच्चे हैं. ठीक है जी. और वो उनको पीएफ में इंतहाई मेहनत मुशक्क़त में डाला जाता है, और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुंदन बन के निकलते हैं ट्रेनिंग के ज़रिए. तो टेक्नोलॉजी, और हमें ये एहसास है पीएफ को कि जब पूरी कौम हमारे पर इतने पैसे खर्च कर रही है, इतने महंगे महंगे जहाज़ लेके दे रही है, तो पीएफ का फ़र्ज़ है कि उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें. तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो मैन पावर है ये सारी दुनिया मानती है. ये वही मैन पावर है जिसने इसराइल के जहाज़ शूट किए थे. ठीक है जी. तो वो अभी भी अमेरिकन के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं और ममालिक के साथ एक्सरसाइज करते हैं. वो सब के सब हमें जो ना एक्नॉलेज करते हैं. तो यहाँ तक टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ हेड ऑफ द इंडियंस. ठीक है जी. और दूसरी बात जो है उनकी जो मोटिवेशन है, ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है पूरी कौम का. जो इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता. तो वो जो पीएफ की मैन पावर है, इसके जज्बे की आपको अक्कासी करता हूँ कि जो ही कोई छोटा सा ऐलान होता है तो पूरी मैन पावर जो है जो काम 6 घंटे में करती है 1 घंटे में करना शुरू कर देती है. ठीक है जी. तो ये है हमारी तैयारी. जो पीएफ वेटरन्स हैं, हम लोग वहीं पे सर्व करके आए हैं, हमारे वही जज्बात हैं, हम अवेलेबल हैं. वी आर टेक्निकल पीपल, और हमारी जब भी ज़रूरत पड़ेगी एयरफोर्स को हमने ऑलरेडी बता दिया है, दे नो इट. कहीं भी हमारी ज़रूरत है हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे. बेशक अदना से अदना ड्यूटी हमें दीजिए, हम करेंगे. बाकी जो है ना फिर सवालों में जो हम देख लेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर आए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं. जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली. हमारी जो आर्मी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ. आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे,
This is the best army of the world. ہمارے لوگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جیتتے ہیں, پیٹرولنگ کمپٹیشنز, باقی کمپٹیشنز. ہمارے جو لوگ ہیں وہ ہر انٹرنیشنل کمپٹیشن میں دے آر اہیڈ. یو این کے اندر جو ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی موٹیویٹڈ ہماری آرمی ہے اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ویٹرن ضرور ہیں, لیکن جو موٹیویشن ہے ہماری وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ابھی آپ کہیں ہم میں سے کسی کو بھی, وی آر ولنگ اینڈ وی آر ریڈی, ایکچولی مینٹلی وی آر ریڈی کہ کوئی بھی ٹاسک ہمیں آرمی دے ہم ابھی کرنے کو تیار ہیں. اتنی جان ہے ہم میں ابھی بھی, کسی قسم کا ٹاسک, مطلب کہ نچلے سے لیول سے لے کے اوپر لیول تک. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس قوم کے لیے. ہم نے 40 سال اس قوم کی خدمت کی ہے اور ابھی ٹائم ہے کہ ہم پے بیک کریں. اس کے بعد ایک دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو انڈینز ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن آج سے نہیں کر رہے ہیں, یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں. آپ شروع کریں گنگا ہائی جیکنگ سے, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. مقصد یہ تھا کہ ٹو کٹ آف دی اوور فلائٹس ٹو دین ایسٹ پاکستان. پھر آپ آ جائیں مختلف اور چیزوں کے اوپر. میں صرف موٹی 2-3 انسیڈنٹ کا ذکر کرتا ہوں. جب کلنٹن نے آنا تھا تو چھتیس سنگھ پورہ میں میسیکر ہوا سکھوں کا, 35 سکھ میرے خیال تھے, ان کا میسیکر ہوا. انہوں نے پاکستان پہ فوراً ڈال دیا. اب آپ سملیرٹی دیکھیں نا, ابھی ادھر وانس آ رہا ہے, ادھر کلنٹن آیا اور وہ انہوں نے ہم پہ میسیکر کا ملبہ ڈال دیا. لیکن جب انکوائری ہوئی ہے اور انڈین کورٹ نے ہی کہا کہ نہیں دس جو ایویڈنس ہے وہ بنایا ہوا ہے, اٹ از ناٹ کریکٹ. اور اس لیے اٹ واز پروون ان دی انڈین کورٹ کہ پاکستان ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. پھر آپ آ جائیں جو انڈین جو پارلیمنٹ ہے اس پہ اٹیک جو ہوا, اگین اٹ واز پروون بیانڈ ڈاؤٹ کہ جی یہ پاکستان نے نہیں کرایا. حالانکہ اس کی وجہ سے پوری ایسکیلیشن ہو گئی تھی, ڈپلائمنٹ ہو گئی, ان کو بہانہ مل گیا. جو جموں اور کشمیر اسمبلی میں ہوا, اگین اٹ واز اے فالس فلیگ. یہ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو انڈین اپنی انکوائریز نے یہ فالس فلیگ قرار دیا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ابھی جو پلوامہ آپ جانتے ہیں جو ہوا اور کیسے ہوا اور کیا ہمارا رسپانس تھا. جو ابھی ہوا ہے پہلگام کا, یہ تو آپ لوگوں کو ابھی بہت بہتر طریقے سے پتہ ہوگا کہ یہ اتنا بھونڈا طریقے سے انہوں نے کیا ہے, بھونڈے طریقے سے کیا ہے یہ جو فالس فلیگ ہے. مطلب کہ 10 منٹ میں FIR ہو گئی, آدھے گھنٹے کا راستہ, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. سو یہ آپ کو بتاتا ہے انڈین مائنڈ سیٹ. یہ جو جنرل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے جو انڈس بیسن واٹر ٹریٹی جو ہے, یہ آج سے نہیں, انڈینز بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, مودی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کو قطرے کے لیے ترساؤں گا. ٹھیک ہے جی, دس از آل پارٹ آف دیٹ اسٹریٹجی. اور یہ جو اول تو دریائے انڈس کو روکنا 10-15 سال کی بات ہے اور ہم کوئی چپ تو نہیں بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہ جو چیز ہے اس کے مائنڈ میں, اور یہ دس از ون آف دی آبجیکٹیوس جو مودی نے یہ کرایا ہے سارا. اور دوسرا, ان کو ہمیشہ بہانہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کریں. ٹیررزم کا ایک ان کو ملا ہوا ہے اور اس پہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ نوٹ کریں, انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جو پہلے انڈیا کو ملتی تھی. وہ فیک ویڈیوز ڈال رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, دس شوز کہ دے آر ڈیسپریٹ. اور وہ ٹرمپ نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ جی دونوں بوتھ آر آور فرینڈس اور دے آر ولنگ ٹو میڈیٹ. ٹھیک ہے جی. چائنا کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا ہمارے فیور میں. ٹھیک ہے جی. سو جتنا انڈین پلان تھا یہ فالس فلیگ کا, یہ نگیٹ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے وہ ابھی پرابلم میں ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگین ایز اے ویٹرن آئی ایم کنونسڈ کہ پاکستان آرمی جو ہے
دیٹ از دی بیسٹ آرمی آف دی ورلڈ. میں نے آرمی میں لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے, ہم سب نے کیا ہے ٹرین. وی نو کہ کون کیا ہے. لہٰذا وی آر کنونسڈ کہ جی یہ بہت ایک سالڈ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی کے ساتھ, اور ہم تیار ہیں کوئی بھی ہمیں ایکشن دیا جائے ہم کرنے کو تیار ہیں. ایٹ دس مومنٹ ویٹرنس جو ہے سارے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Brigadier Sardar Mohammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. موجودہ صورتحال کے بارے میں پہلے کافی کچھ کہا جا چکا ہے, تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں مختصراً صرف ایک پیغام تک جاؤں گا کہ ویٹرن کشمیر کی طرف سے میں اپنی آرمی, اپنے چیف, اپنے گورنمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر میرے اس وقت 1 لاکھ ٹرینڈ آل رینکس, جرنیل سے لے کے سپاہی تک موجود ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اگر فوج کی آرگنائزیشن سے واقف ہوں تو یہ میری فورس 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے, اور الحمدللہ اس پوزیشن میں ہے کہ ہم اپنے آرمی سے آگے جا کر اس مکار انڈیا کا مقابلہ کر سکیں. انڈیا کو جو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں وہ مختلف بہانوں سے, ایک تو پاکستان کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. میں پیغام لے کے آیا ہوں, وہ پیغام یہ ہے کہ 1947 میں بھی یہ ایکس سروس مین لوگ تھے, ویٹرنس تھے, جنہوں نے یہ آزاد کشمیر کا خطہ آزاد کرایا. 70 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم اس انتظار میں ہیں کہ UN ریزولوشن کے اوپر عمل کیا جائے گا, کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا, رائے شماری ہوگی اور کشمیری جو ان کا حق ہے UN کی ریزولوشن کے مطابق ان کو دیا جائے گا, لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے. ہم کب تک صبر کریں گے؟ ہم حکومت سے, آرمی سے اجازت چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے کشمیر کے اس خطے کو آزاد کرا سکیں. اور میرا یہ بیان کوئی ایسی برق نہیں ہے, میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ ٹرین مین پاور موجود ہے, ہمارے لوگوں کا مورال ہائی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے راولہ کوٹ میں ایک بڑا کنووکیشن کیا, اس کے بعد ہجیرہ میں کیا, جس کے اندر جا کر ویٹرنز کی طرف سے ایک ریزولوشن بھی ان کو پیش کیا کہ ہم اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر UN اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو پھر ہمیں کوئی اس کے بعد آپ کے پاس بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں روکا جائے. اور پھر ویٹرن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم میں وہ جو جہاد کا جذبہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے, اور مسلمان کے لیے جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اگر وہ جہاد کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کر سکے یا غازی بن سکے تو اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہمارے ویٹرن کشمیر کی طرف سے پیغام یہی ہے کہ ایک تو ہم پاکستان آرمی کے ساتھ ہیں, دوسرا انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا UN کی ریزولوشن کے مطابق حل ڈھونڈے, نہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگا کہ ہم
खुद इंडिया के साथ जहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को, और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से, कि हमारा पैगाम पहले तो UN तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से UN और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जमील और मैं सिंध से आया हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेटरन चैप्टर ऑफ सिंध। मैं ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें रिपीट करूँगा जो आप पहले सुन चुके हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान कि चाहे कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। और रिसेंट DGISPR ने भी कहा इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। इंडिया जब चाहे आ जाए, आएगा अपनी मर्ज़ी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। आप यकीन करें कि सिंध में जितने भी गाजियान हैं सब रेडी हैं। दे आर आस्किंग अस डेली कि सर बताएं कब जाना है और कहाँ जाना है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी टू फाइट, और हर जगह अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। न सिर्फ गाजियान जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं, बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद हुर मुजाहिदीन की है जो तैयार हैं। उसके अलावा कौम का हर फर्द रेडी है। इंडिया में आजमाना चाहता है, आजमा ले। और 10 दिन से हम इंतज़ार में, वो नहीं आया। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मेजर वसीम महमूद है। आई एम प्रेसिडेंट PASAF Veterans, Pakistan Ex-Servicemen of Armed Forces, President of Pakistan Ex-Servicemen Armed Forces। यहाँ पर बाकी स्पीकर साहबान ने काफ़ी बात की, कुछ थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं। हम तमाम वेटरन्स 3.1 मिलियन वेटरन्स Pakistan ex-servicemen of Armed Forces, Army, Navy, Air Force. We all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside it, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready. We are ready. हमारे अगर आप कभी पार्क्स में चले जाएं अभी वहाँ पर तो आपको नजर आएंगे वहाँ पे दूसरे लोग कम हैं, तो हमारे जो वेटरन्स हैं वो ज़्यादा हैं। वो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फ़ौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है। तो क्या, लेकिन क्या यही मेयार है जंगी जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं।
27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था। अभी नंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे पास चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा ने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट्स, जी, उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि आके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़राए जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आई हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारी मोटिवेशन क्या है, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है सर्विंग जो है सारे, एक स्पाई से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि सैयद हैं और हाफिज़ हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, कि इतना मतलब सैयद भी हो और अपना हाफिज़ भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा, नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुँचा सकता है। तो वहाँ पे मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा है, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं। इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए ज़िंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है। और शहीद तो ज़िंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है। वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका। वो कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम लोग तो वो हैं, हम लोग तो वो वेटरन्स हैं। बाकी उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अपनी जिक्र हुआ था, जो इंडिया ने कहा जी हम वो पानी बंद कर देंगे, यूनिलैटरली पानी बंद नहीं कर सकता। और उसके अलावा उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका भी अपना वो करना पड़ेगा। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो तुम इस तरह की चीज़ करोगे तो जिस दिन उस रिजर्वायर बनाओगे उसके अंदर पानी आएगा, तो उस दिन फिर हमारे बच्चे जो है वो पढ़ा करेंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में
कि once upon a time there was an India. Pakistan, Fauj Zindabad, Pakistan Paindabad. We are open to questions thereafter. Sir, this is Sadaf from PTV News. Sir, सबसे पहले तो आप सबके जज्बे को सलाम, और हम भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। सर, कहना ये है, सवाल भी है कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा जो बैनुल-अक़वामी सतह पे दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, और जो इंडिया है उसके मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया से ही आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। उनके तज्ज़ियाकार ख़ुद कहते फिर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है। सर, से देखते हैं आपके क्या जंग से पहले ही भारत जो है वो उसको शिकस्त का मुँह देखना पड़ गया है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। ये तो हो चुका है। देखिए, बात वहाँ आ जाती है कि जो सच पे होता है ना, अल्टीमेटली अल्लाह ताला मदद उसी की करता है। ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये आज की बात तो है नहीं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, पुलवामा में हुआ, उससे पहले भी बेशुमार होते रहे। तो ये बात, ये अब तो पूरी दुनिया को आया हो गया, और अब तो दुनिया पूरी जो है वो इंडिया को टेररिस्ट स्टेट एक्चुअली गर्दानती है। वो एक अलग बात है, बिकॉज ऑफ देयर सर्टन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट और ऑल दैट, वो खुल के कई कुछ बात नहीं करते। बट लुक एट कैनेडा, इवन इन अमेरिका, दे से दैट इट इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। द पॉइंट इज़ कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इंडिया ने जब भी कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की है वो गलत तरीके से लेने की है। बीइंग अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर हम बिकॉज ऑफ गुड रीजंस अलग हो गए। तो एक अच्छे हमसाये की बजाय वो अपनी डोमिनेशन थ्रू हिंदुत्व, आरएसएस की जो है वो सोच, उसके तरीके से करना चाहता है। और विद इन इंडिया ऑल्सो, इफ़ यू हैव सीन एवरी डे, ये तो आज की बात तो नहीं है, मुसलमानों पे और जो नॉन हिंदूज़ हैं उन पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो वो सारी सब चीज़ें सामने एट दिस मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ आवर फॉर्चून ऑल्सो, गुड फॉर्चून, एंड ऑल्सो यकजहती जो पाकिस्तान के अवाम ने दिखाई है और अफवाज पाकिस्तान जो इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला का एक करम है। और ये यकजहती की वजह से इस वक्त जो इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स हैं, अगर उनके ऊपर आप गौर करें तो वहाँ अफरा तफरी का आलम, nobody is buying that narrative. That is the point. Once upon a time there was in India। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है सर्विस एक्समैन की जानिब से, सबसे जो बड़ा मुद्दा है इस वक्त ये रखा गया है, पाकिस्तान को अंडू करने वालों को बता दिया गया है कि एक वक्त आएगा कि तुम सोचो कि इंडिया भी कभी हुआ करता था। बिल्कुल, और एक्स सर्विसमैन ने यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के साबिक 20 लाख फौजियों की तर्जुमानी कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पाकिस्तान की सरहद पर जो भी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।